Good morning, students. So let's start our lecture. Within last lecture, we have seen two different things. That is, first is hidden field. उसको हमने practical करके भी देखा था, right? हमने उसके related एक practical example भी देखा था. And after that, we have seen प्लेस होल्डर कंट्रोल एंड जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि अगर आप डायरेक्ट पेज के ऊपर कोई भी कंट्रोल को डिस्प्ले करते हो और आप प्लेस होल्डर कंट्रोल का यूज करके कोई भी कंट्रोल को ऐड करते हो देन व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? वो भी मैंने आपको एग्जांपल थ्रू क्लियर किया था. सो दिस वर द थिंग्स व्हिच वी हैव कंप्लीटेड विद इन लास्ट लेक्चर, राइट? और अगर हम यूनिट नंबर 4 की बात करें, दैट इज क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, उसमें से अप टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक 4.1, दैट इज कम्युनिकेशन विद वेब ब्राउजर. After that 4.2, that is response request and server object, right? After that we have started with the topic that is differences between response.redirect and server.transfer. We have also seen practical demonstration related to all the topics. And in last lecture we have completed topic 4.4, right? That is hidden field. And उसके अंदर हमने practical example भी देखा था. So these were the things which we have completed related to unit number 4 till today. Now today we will start with the topic that is 4.4 query string and URL encoding. मतलब लास्ट लेक्चर में हमने जो हिडन फील्ड का टॉपिक देखा था वो भी हमें यही टॉपिक नंबर में कंसीडर करना है, दैट इज 4.4, right? Again I repeat, today we will start with the topic that is topic number 4.4 query string and URL encoding. और यही टॉपिक नंबर के अंदर आपको हिडन फील्ड वाला टॉपिक भी कंसीडर करना है, right? Good enough. So let's start with the topic that is query string and URL encoding. Okay. Now first of all, what is query string? It is the portion of URL right after the question mark. Again I repeat, आपके URL के अंदर राइट जो भी क्वेश्चन मार्क के बाद का जो भी स्ट्रिंग होगी, राइट, या फिर क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल होगी, राइट, दैट इज नोन एज क्वेरी स्ट्रिंग. Again I repeat, that is known as query string, right? So we can say that query string is the portion of the URL after the question mark. So यहाँ पे मैंने example दिया है, right? You are able to see over here. This is the URL, right? उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो question mark है and after that लिखा है that is Q is equal to computer. So this Q is equal to computer is treated as query string. Again I repeat, URL के अंदर जो भी string होती है after the question mark, right, that is treated as query string. So यहाँ पे आप देख सकते हो that is http://www.google.com/search और search के बाद question mark है and question mark के बाद यहाँ पे embed किया है that is Q is equal to computer. So this Q is equal to computer is treated as query string. Now this query string is mostly available in name value pair. Again I repeat, this query string is mostly available in terms of name value pair. मतलब ये जो Q is equal to computer है, right, उसमें से you can say that this Q is name and computer is the value for that particular variable name. Again I repeat, अभी अभी जो हमने देखा, right, that is Q is equal to कंप्यूटर, ये Q इज इक्वल टू कंप्यूटर में से आपको Q को कंसिडर करना है दैट इज नेम, मोर प्रिसाइज वेरिएबल नेम, राइट, एंड कंप्यूटर इज द वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. Again I repeat, computer is the value for that particular variable that is Q, right? Now, if we talk about the advantage of this query string, then we can say it is lightweight and it doesn't create any burden on the server. Obviously, क्यों? Because ये जो query string है वो URL के अंदर प्रोसेस हो जाती है. Again I repeat, ये जो query string है वो URL के अंदर प्रोसेस हो जाती है, राइट? वो सर्वर के कोई भी रिसोर्सेस यूज नहीं करती. अगेन आई रिपीट, ये क्वेरी स्ट्रिंग का कंसेप्ट सर्वर के कोई भी रिसोर्सेज को यूज नहीं करता है. दैट्स व्हाई वी कैन से कि वो सर्वर के ऊपर कोई बर्डन क्रिएट नहीं करता है एंड इट इज वेरी लाइट वेट, राइट? गुड इनफ. नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर हम URL को देखें,
राइट। सो यूआरएल के अंदर जो भी क्वेश्चन मार्क के बाद की जो स्ट्रिंग होती है, राइट, वी आर ट्रीटिंग इट एज अ क्वेरी स्ट्रिंग. So now the thing is that we can have collection of this name value pair. Again I repeat, we can have collection of this name value pair within the URL. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही name value pair URL के अंदर embed कर सकते हैं as a query string. No. Now here is the syntax. See, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, पहले तो वेबसाइट का नेम होगा, राइट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा, एंड क्वेश्चन मार्क के बाद आपको जितने भी नेम वैल्यू पेयर्स एम्बेड करने हैं वो आप एम्बेड कर सकते हो. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर इज, राइट, फर्स्ट नेम वैल्यू पेयर जहां पे कंप्लीट होगी, उसके बाद दूसरी नेम वैल्यू पेयर को कॉन्केटिनेट करने के लिए आपको यहाँ पे कंपलसरी एम्परसेंट एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. अगेन आई रिपीट, आप URL के अंदर एक से ज्यादा नेम वैल्यू पेयर एम्बेड कर सकते हो एंड इट विल बिकम द क्वेरी स्ट्रिंग. बट ये नेम वैल्यू पेयर को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, बट कॉन्केटिनेट करने के लिए आपको वहां पे एम्परसेंट एज अ कॉन्केटिनेशन कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा बिटवीन ईच एंड एवरी नेम वैल्यू पेयर. अगेन आई रिपीट, बिटवीन ईच एंड एवरी नेम वैल्यू पेयर, राइट. सो जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल दैट इज इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क के बाद देर आर टू नेम वैल्यू पेयर, दैट इज वेरिएबल नेम is equal to value. Here is also the same thing, that is variable name is equal to value. But over here you are able to see ampersand use किया है to concatenate this two name value pair. राइट. सो यहाँ पे जो हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जो एग्जाम्पल देखा था वो सेम एग्जाम्पल है, बट ओवर हियर दिस क्यू इज कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल नेम, कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज अ वैल्यू. अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे दूसरा यहाँ पे नेम वैल्यू पेयर कॉन्केटिनेट करना है, तो मैं यहाँ पे एम्परसेंट ऑपरेटर यूज करूंगी, राइट. उसके बाद मैं वेरिएबल नेम फॉर एग्जाम्पल V1 यहाँ पे एम्बेड करूंगी इज इक्वल टू, एंड इसके बाद मुझे लिखना है साइंस, सो मैं यहाँ पे साइंस लिख सकती हूँ. सो ओवर हियर नाउ देयर आर टू नेम वैल्यू पेयर, that is q is equal to computer and V1 is equal to science, and this both name value pair are concatenated with the help of ampersand operator, right. So this is how कि आप कैसे URL के अंदर, right, query string बना सकते हो. You can build the query string within the URL, right. Now what is the significance of this query string? ये query string का यूज क्या होगा? अगर हमें एक पेज से कोई भी वैल्यूज को दूसरे पेज के ऊपर ले जाना है तो वहां पे हम ये क्वेरी स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, अगर हमें एक पेज से कोई भी वैल्यू को दूसरे पेज के ऊपर ले जाना है तो वहां पे हम ये क्वेरी स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, राइट. ऑब्वियसली वो हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में देख लेंगे, राइट. बट दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेरी स्ट्रिंग की जो आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट. सो हियर इज अ स्मॉल एग्जाम्पल की जो मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है, राइट. सो द थिंग इज दैट फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है दैट इज डीम REC एज इंटीजर. मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे रखा है, राइट. चलो उसे मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ 1 से. सो मैंने उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया. आफ्टर दैट अगर मुझे वो पर्टिकुलर वैल्यू को दूसरे पेज के ऊपर ले जाना है और वो पेज का नेम है page1.aspx. अगेन आई रिपीट, ये REC की वैल्यू को मुझे दूसरे पेज के ऊपर ले जाना है, राइट. और वो जो दूसरा पेज है उसका नेम है page1.aspx. सो वी नो दैट इफ वी वांट टू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर तो हम वहां पे response.redirect का यूज करते हैं, राइट. सो हम क्या करेंगे, वी विल राइट response.redirect, राइट. उसके बाद हम लिखेंगे विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन page1.aspx. ऑब्वियसली हमें वो पेज का नेम लिखना पड़ेगा बिकॉज वी वांट टू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, राइट. एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग के रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एम्बेड करना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क के बाद मुझे वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा. सो वही वेरिएबल नेम इज एनो. उसके अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर सकती हूँ,
राइट। एंड अब मुझे यहाँ पे कोई स्टैटिक वैल्यू एम्बेड नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे ये वेरिएबल की वैल्यू एम्बेड करनी है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू को एम्बेड करने के लिए ऑब्वियसली मुझे वो वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। सो वेरिएबल का नेम क्या है? आरईसी। आरईसी कौन सी डेटा टाइप का है? इंटीजर। तो उसे मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया डॉट टू स्ट्रिंग, राइट। और एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करके ये वेरिएबल नेम के साथ मैंने वो rec.to स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर दिया। नाउ द सिग्निफिकेंस इज दैट, सी यहाँ पे ऑब्वियसली डबल कोटेशन आएंगे, राइट, बिकॉज हम जब भी रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के अंदर पेज का नेम लिखते हैं तो वहां पे हम डबल कोटेशन लिखते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे डबल कोटेशन तो आएगा ही, राइट। नाउ अगर मैंने इसकी जगह कोई स्टैटिक वैल्यू यूज की होती, राइट, सो मैं डायरेक्टली क्या लिखती यहाँ पे? पैरेंथेसिस डबल कोटेशन पेज 1 डॉट ASPX क्वेश्चन मार्क NO इज इक्वल टू 1, राइट। एंड डबल कोटेशन यहाँ पे ओवर हो जाते एंड पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज हो जाता, राइट। सो दिस इज हाउ कि अगर हम कोई स्टैटिक क्वेरी स्ट्रिंग यूज करते तो इस हिसाब से ये क्वेरी स्ट्रिंग फ्रेम होती। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है? ये REC की वैल्यू को कॉन्केटिनेट करना है, ऐड करना है, इसीलिए मुझे यहाँ पे वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करने के लिए, उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे अलग से एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो नाउ ओवर हियर यू नीड टू कंसीडर कि अगर आपको, राइट, क्वेरी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करनी है वहां पे भी एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, और अगर वेरिएबल नेम के साथ कोई दूसरे हमने क्रिएट किए हुए वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करना है, उसकी वैल्यू को कॉन्केटिनेट करना है, तो वहां पे भी हमें एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो हियर इज द एग्जांपल कि जो बहुत ही क्लियर हो जाएगा इससे। See, there is REC variable which is of integer data type जिसके अंदर मैंने 1 असाइन कर दिया। NM वेरिएबल है which is of string data type के जिसके अंदर मैंने निकिशा को कॉन्केटिनेट कर दिया। अब मुझे ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू को एज अ क्वेरी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करना है और पेज 1 डॉट ASPX पेज के ऊपर ले जाना है। तो ऑब्वियसली नेविगेशन के रिलेटेड तो मेरे पास यहाँ पे है, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगी पेज 1 डॉट ASPX, वो तो मेरे पेज का नेम है। आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट वेरिएबल मैं क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर लिख रही हूँ, दैट इज NO, वैल्यू असाइन करनी है, सो इक्वल टू, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे डबल कोटेशन कंप्लीट हो गया, मतलब ये एक स्ट्रिंग बन गई। सो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकती हूँ कि हमें मिलेगा दैट इज पेज 1, राइट, डॉट ASPX, राइट, इज ASPX क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हमें मिलेगा NO इज इक्वल टू, उसके बाद हमने क्या कॉन्केटिनेट किया? REC.to स्ट्रिंग, मतलब REC की वैल्यू क्या है? 1, राइट, और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हमने यहाँ पे एम्परसेंट यूज किया है तो यहाँ पे 1 कॉन्केटिनेट हो जाएगा, राइट। नाउ आफ्टर दैट मुझे दूसरी नेम वैल्यू पेयर क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेट करनी है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो एम्परसेंट ऑपरेटर ऑलरेडी है, राइट। सो मुझे यहाँ पे एम्परसेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा ताकि मैं दूसरी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकूं, राइट। एंड आफ्टर दैट सी ओवर हियर अगेन डबल कोटेशन मैंने स्टार्ट किया, राइट, उसके अंदर भी मैंने एम्परसेंट ऑपरेटर यूज किया। अब ये एम्परसेंट ऑपरेटर किसके रिलेटेड है? क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर नेम वैल्यू पेयर को कॉन्केटिनेट करने के लिए है। अगेन आई रिपीट, ये डबल कोटेशन के अंदर जो एम्परसेंट ऑपरेटर है वो क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर नेम वैल्यू पेयर कॉन्केटिनेट करने के लिए है, तो ये एम्परसेंट ऑपरेटर हमें यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे ये एम्बेड हो जाएगा। उसके बाद ये नेम इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा, दैट इज नेम इज इक्वल टू, राइट, डबल कोटेशन यहाँ पे ओवर हो गया, एंड आफ्टर दैट अगेन विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंट मैंने NM विच इज द वेरिएबल नेम ओवर हियर, राइट, वो मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया। ये NM तो वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू क्या है? निकिशा, तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो जाएगा निकिशा, राइट। इन शॉर्ट जब भी मैं URL के अंदर देखूंगी ब्राउजर के अंदर तो मुझे इस हिसाब से पूरी स्ट्रिंग मिलेगी। अगेन आई रिपीट, मुझे URL के अंदर इस हिसाब से पूरी स्ट्रिंग मिलेगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करने के लिए तो आप एम्परसेंट ऑपरेटर यूज करोगे ही, बट आपको नेम वैल्यू पेयर कॉन्केटिनेट करनी है आपके क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर, तो वहां पे भी आपको एम्परसेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा,
एंड फॉर दैट पर्पज डबल कोटेशन के अंदर भी एम्परसेंट ऑपरेटर आएगा बिफोर द वेरिएबल नेम. Again I repeat, before the variable name within the query string. Again I repeat, within the query string. Right? So this is how कि हम कैसे multiple variable and value pair को concatenate कर सकते हैं. Right? Good enough. अब मुझे जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल के नेम वैल्यू पेयर को कॉन्केटिनेट किया है, ऑब्वियसली मुझे रिट्राइव करना पड़ेगा दूसरे पेज के ऊपर, दैट इज पेज 1.aspx पेज के ऊपर. सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट और वो कलेक्शन का यूज करेंगे कि जो हमने हिडन फील्ड के वर्क यूज किया था. राइट? सो नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? मुझे क्या करना है? मुझे यूआरएल में से एनओ की वैल्यू और नेम की वैल्यू को फेच करना है. और हमें पता है कि अगर हमें यूआरएल में से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को फेच करना है तो हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन का यूज करना पड़ेगा. सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन एनओ. अब ये एनओ क्या है? जो वेरिएबल का नेम है कि जो मैंने क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर यूज किया था. राइट? सो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे हिडन फील्ड 1 लिखा था. राइट? यहाँ पे हम लिखेंगे एनओ बिकॉज क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर यूआरएल के अंदर हमें एनओ वेरिएबल नेम मिलेगा. राइट? सो रिस्पॉन्स डॉट राइट का यूज करके हमने पेज के ऊपर उसे राइट कर दिया. अगेन द सेम स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन का यूज करके नेम वेरिएबल में की वैल्यू को हमने रिट्राइव किया. एंड अगेन रिस्पॉन्स डॉट राइट का यूज करके हमने पेज के ऊपर उसे डिस्प्ले कर दिया. और ये पूरा टास्क हमने कहाँ पे परफॉर्म किया है? पेज लोड इवेंट के ऊपर परफॉर्म किया है. और ये पेज लोड इवेंट कौन से पेज की है? पेज 1.aspx पेज की है. अगेन आई रिपीट, पेज 1.aspx पेज की है कि जो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के अंदर यूज किया है. राइट? सो दिस इज द थिंग यू कैन डू कि अगर आपको क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है तो आप इस हिसाब से कर सकते हो. राइट? एंड अगर आपको क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू रिट्राइव करनी है तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन का आप यूज कर सकते हो. राइट? गुड इनफ. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी सीन, क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करते हो, राइट, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज रिट्राइव्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग बिकॉज इट इज अ क्वेरी स्ट्रिंग. राइट? एंड आफ्टर दैट आप कोई भी दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो जिस हिसाब से आपकी वैल्यू है. अगर नंबर है, इंटीजर है, तो आप कन्वर्जन फंक्शन का यूज करके आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो. स्ट्रिंग है, नो प्रॉब्लम, वहां पे तो कन्वर्जन की जरूरत है ही नहीं. बट द इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन एम्बेड करेंगे वो स्ट्रिंग के टर्म्स में होगी. तो ऑब्वियसली रिट्राइव करेंगे तो वो भी स्ट्रिंग के टर्म्स में ही रिट्राइव होगी. बट इफ वी वांट इन टर्म्स ऑफ अनदर डेटा टाइप तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट? और वैल्यू जो भी हम क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करेंगे ऑब्वियसली वो कलेक्शन के टर्म्स में होगी. राइट? और वो कलेक्शन के अंदर जो इंडेक्स होगा वो वेरिएबल नेम से होगा. इसीलिए वी वेर एबल टू रिट्राइव विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन. और उसके अंदर जो हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम यूज किया है दैट इज एनओ, वो आप यहाँ पे देख सकते हो. आपने यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग बनाते वक्त वो एनओ वेरिएबल लिखा था. राइट? सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज स्ट्रिंग वैल्यू होती है और वेरिएबल नेम से आप उसे एक्सेस कर सकते हो. These are the two important things that you need to remember related to this query string. Right? Good enough. Now the topic which is related to query string is URL encoding. Again I repeat, the topic which is related to query string is URL encoding. Now what is the thing? Now जब भी आप क्वेरी स्ट्रिंग बनाते हो स्टूडेंट्स तो मे बी पॉसिबल कि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज में बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं. राइट? फॉर एग्जांपल हाइफन हो सकता है, डॉलर हो सकता है, प्लस साइन हो सकती है, एक्सक्लेमेशन मार्क, पैरेंथेसिस, कॉमा, एस्ट्रिक, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जो हमने वहां पे एज अ वैल्यू एम्बेड की है क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर. राइट? वो वहां पे हो सकता है. राइट? वैल्यूज हो सकती है बिकॉज वी कांट रिस्ट्रिक्ट कि आप सिर्फ वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक ही रखो. नो, बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होती है. फॉर एग्जांपल मैं अपना पूरा नेम क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर एम्बेड करूं तो क्या आएगा? निकीशा स्पेस जरी वाला आएगा.
राइट। तो बीच में जो स्पेस है दैट इज ऑल्सो अ स्पेशल कैरेक्टर। और ऐसे कैरेक्टर्स कि जो यूआरएल के अंदर उसके स्पेशल मीनिंग है या फिर रिजर्व्ड कैरेक्टर्स है, राइट, उसे हम डायरेक्टली वहां पे यूज नहीं कर सकते। अगेन आई रिपीट, उसे हम डायरेक्टली वहां पे यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप यही सोचो ना कि वहां पे हम एम्परसेंट यूज कर रहे हैं नेम वैल्यू पेयर को कॉन्केटिनेट करने के लिए, लेकिन अगर मेरे वैल्यू के अंदर ही एम्परसेंट है तो मैं वहां पे क्या कर सकती हूँ, राइट। ऑब्वियसली मैं ऐसा तो नहीं कह सकती ना कि वैल्यू के अंदर एम्परसेंट मत रखो, नो दैट इज नॉट फेयर। तो मैं वो वहां पे ऐसा नहीं कह सकती। तो ऐसे कैरेक्टर्स कि जिसके स्पेशल मीनिंग है, राइट, तो हम उसे एनकोड कर सकते हैं ताकि यूजर को जो वैल्यू देनी है वो वैल्यू वो कैरेक्टर्स का यूज करके दे सकता है। एनकोड कर देंगे तो यूआरएल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और दूसरे पेज के ऊपर उसे डिकोड करके हम उसमें से ओरिजिनल वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हैश जो सिंबल है वो बुकमार्क के लिए आप यूज करते हो आपकी लिंक के अंदर, राइट। So students, there are many symbols, many special characters, many reserved characters related to the URL कि जो हम डायरेक्टली URL के अंदर यूज नहीं कर सकते। बट ऐसा तो नहीं है कि हमारे वैल्यूज में वो स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। नो, इट कैन नॉट बी द केस। मे बी पॉसिबल के वैल्यूज के अंदर वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो हम मना नहीं कर सकते। सो फॉर दैट पर्पज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ URL एनकोडिंग। सो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है तो हम URL को एनकोड कर सकते हैं और दूसरे पेज के ऊपर उसे डिकोड करके ओरिजिनल वैल्यू को हम रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस URL एनकोडिंग विद क्वेरी स्ट्रिंग, राइट। सी फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा एज्यूम करो कि आप जो वैल्यू दे रहे हो वो वैल्यू के अंदर स्पेस है। सी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल नेम लिखा है दैट इज पी नेम, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, एंड डबल कोटेशन के अंदर आप देख सकते हो फ्लाइंग कारपेट मैंने लिखा है। ऑब्वियसली फ्लाइंग स्पेस कारपेट है। तो अगर मैं ये PNM को कॉन्केटिनेट कर दूंगी मेरे क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पे क्या है, स्पेस है। एंड स्पेस इज अ रिजर्व्ड कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है कि जो हम डायरेक्टली URL के अंदर यूज नहीं कर सकते, राइट। सो फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के अंदर पहले तो ऑब्वियसली डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे पेज 1 डॉट ASPX, मतलब जिसके ऊपर हमें रीडायरेक्ट करना है वो। आफ्टर दैट वेरिएबल का नेम दैट इज पी नेम, राइट, जो हम नेम वैल्यू पेयर क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर एम्बेड करना चाहते हैं वो वेरिएबल का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया पी नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन ओवर। अब अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एम्परसेंट के बाद पी नेम, राइट, लिख सकती थी जो आपका यहाँ पे वेरिएबल नेम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू के अंदर स्पेस है तो मुझे उसे एनकोड करना पड़ेगा। एंड हमने ऑलरेडी सर्वर ऑब्जेक्ट की URL एनकोड पढ़ी है मेथड, राइट। अगेन आई रिपीट, हमने सर्वर ऑब्जेक्ट की URL एनकोड मेथड पढ़ी थी। तो वो सर्वर ऑब्जेक्ट की URL एनकोड मेथड का यूज करके हम PNM दैट इज पी नेम वेरिएबल की वैल्यू को एनकोड कर सकते हैं, राइट। एंड जो पेज 1 डॉट ASPX पेज के ऊपर जब हम उसे रिट्राइव करेंगे तो हम वहां पे URL डिकोड मेथड का यूज करके हम उसे डिकोड करके अगेन जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज फ्लाइंग स्पेस कारपेट, उस हिसाब से हम उसे रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। इसीलिए स्टूडेंट्स आप जब भी URL के अंदर मार्क करोगे तो जहां पे भी स्पेस होगी वहां पे आप आइदर %20 या फिर प्लस कैरेक्टर आप देखोगे URL के अंदर। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द ब्राउजर, राइट, कि ये दोनों में से कौन सा कैरेक्टर होगा, लेकिन आप जब भी URL के अंदर देखोगे, राइट, आपको स्पेस की जगह हमेशा आइदर %20 या फिर प्लस साइन आपको URL दैट इज एड्रेस बार के अंदर दिखेगा। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमने तो वहां पे स्पेस दिया था फिर भी हमें वहां पे ये ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज URL के अंदर डायरेक्टली हम स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं दे सकते, उसे एनकोड करके ही हमें यूज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ URL एनकोडिंग इन
क्वेरी स्ट्रिंग कि अगर हमें स्पेशल कैरेक्टर्स को भी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर ट्रांसमिट करने हैं, then that is possible. Only the thing is that one thing you need to add, you have to use URL encode and URL decode methods, right? Good enough. Now here is the application कि जो हम ये query string और URL encoding को demonstrate करने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी. It is application number 15 of your problem sheet. It is create an application to demonstrate query string with multiple values and URL encoding. राइट मतलब हम क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करके मल्टीपल वैल्यूज भी वहां पे यूज करेंगे एंड अलोंग विद दैट यूआरएल एनकोडिंग वहां पे यूज करके हम देखेंगे. राइट सो इट इज एप्लीकेशन नंबर 15 के जो अब हम स्टार्ट करेंगे. राइट सो हियर इज विजुअल स्टूडियो. राइट एज वी वांट टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट तो हम यहाँ पे फाइल मेनू में जाके न्यू ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दैट इज वेबसाइट. राइट सो इट विल आस्क मी लैंग्वेज एंड द टेम्पलेट कि जो मुझे नई वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज करना है. सो आई विल सिलेक्ट विजुअल बेसिक. सेकंड टेम्पलेट ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट और मैं यहाँ पे वेबसाइट का नेम दे देती हूँ दैट इज क्वेरी स्ट्रिंग. राइट URL एनकोडिंग EX. मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नेम दिया क्वेरी स्ट्रिंग URL एनकोडिंग EX एंड आई विल क्लिक ऑन ओके बटन. ऑब्वियसली जैसे हम ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे राइट वो हमें यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करके दे देगा. बट जो हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसके अंदर हमें सिर्फ web.config फाइल मिलेगी एज वी हैव सिलेक्टेड एम्प्टी वेबसाइट. राइट नाउ टू डेमोन्स्ट्रेट दिस पेज, now to demonstrate this application that is application 15 of our problem sheet. right हम यहाँ पे 3 pages create करेंगे. again I repeat हम यहाँ पे 3 pages create करेंगे. so pages create करने के लिए right click on the website within solution explorer, add new item. right यहाँ पे मैं visual basic select करूंगी, यहाँ से web form में select करूंगी और पेज का नेम मैं यहाँ पे दे देती हूँ q1.aspx. again I repeat q1.aspx and I will click on add button. so first page is created over here. right आप यहाँ पे देख सकते हो this is the design view of our page that is q1.aspx. now we will add the second page. again right click on the website, add new item, visual basic, web form and the page name that I will give as q2.aspx. again I repeat मैंने यहाँ पे पेज का नेम दिया that is q2.aspx and I will click on add button. so again the second page is added. now the third page, add new item, visual basic, web form and I will give the name of the page that is q3.aspx and I will click on add button. right so students here are the 3 pages that is q1, q2 and q3. अब मुझे क्या करना है, Q1 पेज के ऊपर मुझे 3 वैल्यूज यूजर के पास से लेनी है दैट इज नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. दिस 3 वैल्यूज आई वांट टू टेक फ्रॉम द यूजर q1.aspx पेज के ऊपर. उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये q1.aspx पेज के ऊपर से जो 3 वैल्यूज मैंने ली होंगी क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करके उसे मैं q2.aspx पेज के ऊपर ले जाऊंगी और q2.aspx पेज के ऊपर मैं यहाँ पे लेबल कंट्रोल में डिस्प्ले करूंगी. लेकिन कैसे डिस्प्ले करूंगी, नंबर तो मैं अलग से डिस्प्ले करूंगी लेकिन जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो हमने अलग अलग इनपुट लिया था अब मैं उसे स्पेस का यूज करके कॉन्केटिनेट करके लेबल कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करूंगी. राइट आफ्टर दैट अब 3 की जगह 2 वैल्यूज हो गई बिकॉज मैंने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को स्पेस का यूज करके कॉन्केटिनेट कर दिया. अब मैं क्या करूंगी, वो दोनों वैल्यू को Q3 पेज के ऊपर ले जाऊंगी और Q3 पेज के ऊपर उसे मैं URL में से रिट्राइव करके लिटरल कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करूंगी. अगेन आई रिपीट URL के अंदर दैट इज क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करके मैं उसे Q2 से Q3 के ऊपर ले जाऊंगी एंड आफ्टर दैट URL में से रिट्राइव करके मैं लिटरल कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करूंगी. सो दिस इज हाउ आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे हम क्वेरी स्ट्रिंग एंड URL एनकोडिंग एक ही एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं. राइट सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो ऑब्वियसली हमें डिजाइनिंग करनी पड़ेगी. राइट
सो हियर इट इज, मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज एंटर NO, दैट इज नंबर। उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज कर लेती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की ID प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ दैट इज TXT NO, राइट। आफ्टर दैट सेकेंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज एंटर फर्स्ट नेम, राइट। अगेन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ID प्रॉपर्टी में सेट कर देती हूँ TXT F नेम, राइट। आफ्टर दैट थर्ड वैल्यू मुझे लेनी है दैट इज एंटर लास्ट नेम, राइट। अगेन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, राइट, दैट इज TXT L नेम, मैंने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की ID सेट कर दी, राइट। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक बटन कंट्रोल प्लेस कर देती हूँ, राइट। उसकी ID प्रॉपर्टी में ले लेती हूँ BTN Q स्ट्रिंग, राइट। एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिख लेती हूँ दैट इज क्वेरी स्ट्रिंग, राइट। सो दिस इज हाउ के मैंने डिजाइन कर दिया 3 वैल्यूज लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस एंड द बटन, राइट। गुड इनफ। अब हम क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, ये जो 3 वैल्यूज है वो 3 वैल्यूज को मुझे क्वेरी स्ट्रिंग बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाना है, राइट। अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाना है। तो मैं ये क्वेरी स्ट्रिंग की क्लिक इवेंट ओपन करूंगी। सो हियर इट इज, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अब मैं यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे Q2 पेज के ऊपर ले जाना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, वो मेथड का मैं यूज करूंगी। डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगी Q2.ASPX पेज, दैट इज द नेम ऑफ माय पेज। एंड इसके बाद मुझे क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्वेश्चन मार्क, बिकॉज क्वेरी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होती है। NO इज इक्वल टू, फर्स्ट वेरिएबल का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया NO इज इक्वल टू। अब मुझे ये वैल्यू कहाँ से लानी है, ये Q1 पे ये जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है दैट इज TXT NO.text, उसमें से मुझे लानी है। तो मैं यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद एम्परसेंट यूज करूंगी कॉन्केटिनेट करने के लिए, एंड आफ्टर दैट आई विल राइट TXT NO.text, राइट। मैंने फर्स्ट नेम वैल्यू पेयर यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दी, दैट इज NO वेरिएबल का नेम दे दिया, और उसके रिलेटेड वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्परसेंट का यूज कर दिया। नाउ द सेकेंड नेम वैल्यू पेयर मुझे कॉन्केटिनेट करनी है, तो अगेन मैं यहाँ पे एम्परसेंट ऑपरेटर यूज करूंगी। नेम वैल्यू पेयर है तो वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करने के लिए मुझे डबल कोटेशन लिखना पड़ेगा, एंड डबल कोटेशन के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग की नेम वैल्यू पेयर को कॉन्केटिनेट करने के लिए यहाँ पे एम्परसेंट लिखना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आई विल राइट F नेम इज इक्वल टू, राइट। अब मुझे फर्स्ट नेम कहाँ से लाना है, ऑब्वियसली ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में से लाना है, दैट इज TXT F नेम। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी दैट इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, मैं यहाँ पे लूंगी, राइट। एंड आफ्टर दैट आई विल राइट TXT F नेम डॉट टेक्स्ट। सो सेकेंड नेम वैल्यू पेयर भी मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दी। नाउ थर्ड नेम वैल्यू पेयर को कॉन्केटिनेट करना है, तो पहले स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करने के लिए एक एम्परसेंट तो रखना ही पड़ेगा। आफ्टर दैट डबल कोटेशन लिखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे वेरिएबल नेम यहाँ पे पहले लिखना है, वो क्वेरी स्ट्रिंग का है, तो उसे कॉन्केटिनेट करने के लिए फिर से डबल कोटेशन के अंदर एम्परसेंट L नेम इज इक्वल टू, राइट। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे फिर से एम्परसेंट का यूज करूंगी, बिकॉज ये L नेम कहाँ से आएगा, ये थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में से आएगा, दैट इज TXT L नेम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज TXT L नेम डॉट टेक्स्ट, राइट। सो इस हिसाब से हमने यहाँ पे पूरी क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट कर दी कि जिसके अंदर हमने 3 नेम वैल्यू पेयर्स यूज किए हैं, एंड अलोंग विद दैट हमने उसे बता भी दिया कि उसे Q2.ASPX पेज के ऊपर जाना है, राइट। नाउ अब ये वैल्यूज कहाँ पे चली जाएगी, Q2.ASPX पेज के ऊपर चली जाएगी। तो हमने जैसे डिस्कस किया है यहाँ पे डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले लिखती हूँ NO, और हमने डिसाइड किया था कि हम लेबल कंट्रोल के अंदर वो डिस्प्ले करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लेबल कंट्रोल ले लेती हूँ, इट इज ओवर हियर, राइट। उसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। सो प्रॉपर्टी विंडो में उसकी ID प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ, दैट इज LBL NO, राइट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं ब्लैंक कर देती हूँ, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में रिमूव कर देती हूँ, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू हमें डिस्प्ले करने के लिए मैंने लेबल कंट्रोल का यूज किया। सेकंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम,
अगेन मैं यहाँ पे लेबल कंट्रोल का यूज करती हूँ, राइट। वो लेबल कंट्रोल की अगेन प्रॉपर्टी विंडो में जाके आईडी में सेट करती हूँ, दैट इज LBL नेम, राइट। एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे एम्प्टी कर देती हूँ, राइट। सो जो यहाँ पे 3 वैल्यूज थी, अब मैं उसे यहाँ पे 2 वैल्यूज के टर्म्स में यहाँ पे ले आऊंगी, राइट। एंड आफ्टर दैट अगेन हम एक बटन कंट्रोल रखते हैं कि जिसका यूज करके हम उसे Q3 पेज के ऊपर ले जाएंगे। तो प्रॉपर्टी विंडो में जाके बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी दैट इज BTN URL एनकोड, बिकॉज मुझे URL एनकोडिंग करना है, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज URL एनकोडिंग, राइट। गुड इनफ। अब मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर Q2.ASPX पेज की पेज लोड इवेंट पे मुझे ये 3 वैल्यूज को URL में से रिट्राइव करना है और ये दोनों लेबल के अंदर असाइन करना है। एंड आफ्टर दैट जब भी यूजर ये URL एनकोडिंग बटन के ऊपर क्लिक करेगा, मुझे वो 2 वैल्यूज कि जो ये लेबल के अंदर अवेलेबल है उसे ये Q3.ASPX पेज पर ले जाना है विद द हेल्प ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग एंड URL एनकोडिंग, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पेज लोड इवेंट ओपन करते हैं ताकि हम वैल्यूज को रिट्राइव कर सके। सो पेज लोड इवेंट के ऊपर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट्स टेक इट एज, चलो पहले चेक करते हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है कि नहीं है। तो उसके रिलेटेड पहले हम इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, राइट। पहली जो नेम है, नेम वैल्यू पेयर के अंदर नेम हमने दिया था दैट वाज NO, राइट। तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे NO। उसके बाद हम चेक करेंगे इज इक्वल टू नथिंग, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है। और उसके बाद मैं फिर से लिखती हूँ दैट इज रिक्वेस्ट, राइट, डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। सेकंड जो नेम वैल्यू पेयर हमने कॉन्केटिनेट की थी वहां पे दैट वाज F नेम। सो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम दैट इज F नेम ले लेती हूँ, राइट, इज इक्वल टू नथिंग, राइट। और थर्ड जो नेम वैल्यू पेयर थी वो उसके अंदर हमने लिया था दैट इज L नेम। सो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखती हूँ दैट इज L नेम, राइट, इज इक्वल टू नथिंग, राइट। वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे NO, F नेम और L नेम वो यूज किया है। वो क्या है, वो हमने यहाँ पे NO, F नेम और L नेम जो वेरिएबल नेम क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर दिया है वो है, राइट। सो वो मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया और चेक किया कि उसमें नथिंग है कि नहीं है। नथिंग का मीनिंग क्या होगा कि इसमें वैल्यू नहीं है, तो उसके अंदर हमें नथिंग मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगी दैट इज रिस्पॉन्स डाइट डॉट राइट, उसके अंदर मैं लिख देती हूँ दैट इज वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने इस हिसाब से इसके अंदर लिख लिया। एल्स, एल्स में कब जाएगा, जब तीनों में वैल्यू होगी तब। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये 2 लेबल्स के अंदर वैल्यू लानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट लेबल नेम दैट इज LBL NO डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, वैल्यू कहाँ से आएगी, क्वेरी स्ट्रिंग में से आएगी। सो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन का हम यूज करेंगे, उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू आएगी दैट इज NO, सिंपल। एंड द सेकंड लेबल दैट इज LBL नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, राइट। अब हमें यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना है। सो फर्स्ट जो वेरिएबल है वो हमारा F नेम है, वो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, राइट। प्लस ऑपरेटर का मैं यूज कर सकती हूँ, स्पेस कॉन्केटिनेट कर दूंगी, अगेन प्लस ऑपरेटर का मैं यहाँ पे यूज करूंगी, एंड आई विल राइट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, राइट। और क्वेरी स्ट्रिंग में से कौन से वेरिएबल में से वैल्यू रिट्राइव करनी है, L नेम, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि हम कैसे स्पेस कॉन्केटिनेट कर सकते हैं विथ द वैल्यूज कि जो हम वेरिएबल में से रिट्राइव करेंगे कि जो क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, राइट। मीन्स जो 3 वैल्यूज थी अब वो 2 वैल्यूज बन गई, राइट। नाउ व्हाट, अब हमें ये URL एनकोडिंग के रिलेटेड कोडिंग करना है। तो उसकी क्लिक इवेंट हम ओपन करेंगे। इसके ऊपर हमें क्या करना है, Q3 पेज के ऊपर नेविगेट करना है एंड अलोंग विद दैट हमें ये दोनों लेबल की वैल्यू को वहां पे ले जाना है।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, राइट। एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे पेज का नेम लिखूंगी दैट इज q3.aspx क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे वो क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है, राइट। फर्स्ट जो वेरिएबल है उसका नेम मैं फिर से ले लेती हूँ no इज इक्वल टू, अब वैल्यू कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली लेबल में से आएगी, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, हमने यहाँ पे सी, यहाँ पे हमने ये एम्परसेंट यूज किया है डबल कोटेशन के बाहर, राइट। अगेन आई रिपीट, डबल कोटेशन के बाहर हमने एम्परसेंट यूज किया है। सो जितने भी एम्परसेंट डबल कोटेशन के बाहर है, राइट, वो एम्परसेंट की जगह हम प्लस यूज कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों वैल्यूज के जिसे हम कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं वो टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हम प्लस यूज करके भी देख लेते हैं, लेकिन कहाँ पे, डबल कोटेशन के बाहर। अगेन आई रिपीट, कहाँ पे, डबल कोटेशन के बाहर। तो मैं यहाँ पे प्लस यूज करती हूँ, कौन सी वैल्यू को कॉन्केटिनेट करना है, LBL no डॉट टेक्स्ट की वैल्यू को मुझे कॉन्केटिनेट करना है। अगेन मैं प्लस यूज कर सकती हूँ बिकॉज डबल कोटेशन के बाहर है। अब मुझे क्या कॉन्केटिनेट करना है, क्वेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम कॉन्केटिनेट करना है, तो ऑब्वियसली वो तो मुझे डबल कोटेशन के अंदर एम्परसेंट का ही यूज करना पड़ेगा। एंड वेरिएबल का नेम मैं यहाँ पे दे देती हूँ नेम इज इक्वल टू, नाउ अगेन डबल कोटेशन के बाहर है तो मैं यहाँ पे प्लस का यूज कर सकती हूँ। नाउ व्हाट, मुझे क्या कॉन्केटिनेट करना है, मुझे ये LBL नेम की वैल्यू को कॉन्केटिनेट करना है कि जिसके अंदर स्पेस है। और हमने अभी अभी पढ़ा कि जब भी हम कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को कॉन्केटिनेट करते हैं तो वहां पे हमें सर्वर ऑब्जेक्ट की URL एनकोड मेथड का यूज करना पड़ेगा, राइट। और वो URL एनकोड मेथड के अंदर हम वो वैल्यू लिख सकते हैं। सो URL एनकोड मेथड के अंदर मैं लिखूंगी दैट इज LBL name dot text, right? I will write LBL name dot text, right? So response dot redirect q3 dot aspx question mark no, that is the first variable within the query string because वो डबल कोटेशन के अंदर है। प्लस ऑपरेटर का यूज किया, डबल कोटेशन के बाहर है। फर्स्ट लेबल की वैल्यू को हमने कॉन्केटिनेट कर दिया, अगेन प्लस ऑपरेटर का यूज किया। क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल नेम को मुझे कॉन्केटिनेट करना है, राइट, इसीलिए डबल कोटेशन के अंदर एम्परसेंट का यूज किया, नेम वेरिएबल नेम दे दिया इज इक्वल टू डबल कोटेशन ओवर, वैल्यू लानी थी LBL नेम में से, लेकिन वहां पे स्पेशल कैरेक्टर अवेलेबल है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सर्वर डॉट URL एनकोड मेथड का यूज किया, राइट। अब ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, Q3 पेज के ऊपर जाएगी। इन शॉर्ट, अब मुझे ये Q3 पेज के ऊपर, पेज लोड इवेंट के ऊपर मुझे वो दोनों वैल्यूज को रिट्राइव करना है। अगेन आई रिपीट, Q3 पेज के ऊपर मुझे वो दोनों वैल्यूज को रिट्राइव करना है विद इन लिटरल कंट्रोल। तो उसके रिलेटेड डिजाइन कर देते हैं ये Q3 पेज के ऊपर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी no, राइट, जो कंट्रोल हम लेंगे वो लिटरल कंट्रोल है, सो वो मैंने यहाँ पे ले लिया। उसकी ID प्रॉपर्टी हम प्रॉपर्टी विंडो में सेट कर देते हैं दैट इज LITNO, दैट इज लिटरल NO, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नेम, राइट, एंड सेकेंड लिटरल कंट्रोल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, राइट, फॉर नेम, सो इट्स ओवर हियर। उसकी ID प्रॉपर्टी हम प्रॉपर्टी विंडो में सेट कर लेते हैं LIT नेम, राइट, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया LIT नेम। अब सिंपल मुझे क्या करना है, Q3 पेज की पेज लोड इवेंट के ऊपर मुझे वो क्वेरी स्ट्रिंग में से 2 वैल्यूज रिट्राइव करनी है दैट इज no एंड नेम, कि जो हमने यहाँ पे ये URL एनकोड जो बटन था उसके ऊपर हमने ये 2 वैल्यूज को कॉन्केटिनेट किया था, राइट, सिंपल। तो उसके रिलेटेड तो मुझे क्या करना है, LIT no डॉट टेक्स्ट, मतलब लिटरल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मुझे असाइन करना है। क्या असाइन करना है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में जो क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन है उसमें से मुझे no वेरिएबल की वैल्यू को रिट्राइव करके कॉन्केटिनेट करना है, सिंपल। एंड द सेकंड इज LIT नेम डॉट टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में से जो क्वेरी स्ट्रिंग है उसमें से मुझे नेम वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्केटिनेट करना है, बट
वो नेम वेरिएबल की वैल्यू को हमने यहाँ पे एनकोड किया है विद द हेल्प ऑफ यूआरएल एनकोड मेथड। तो उसे ओरिजिनल वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट इज सर्वर डॉट यूआरएल डिकोड मेथड हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। और यूआरएल डिकोड मेथड के अंदर हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन में से वो नेम वेरिएबल की वैल्यू रिट्राइव करके हम यूआरएल डिकोड के अंदर पास करेंगे ताकि हमें ओरिजिनल वैल्यू मिले विद इन दिस सेकंड लिटरल कंट्रोल, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि हम कैसे, राइट, यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग एंड यूआरएल एनकोडिंग कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे 3 पेजेस क्रिएट किए हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हमें q1.aspx पेज को एज अ स्टार्ट पेज सेट करना पड़ेगा। तो मैं उसे यहाँ पे स्टार्ट पेज सेट करती हूँ एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट। सो जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमें फर्स्ट पेज दैट इज q1.aspx पेज हमें डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा। बट एज वी आर एग्जीक्यूटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो ऑब्वियसली विथ डिबगिंग करना है तो मैंने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया, राइट। सो ब्राउजर के अंदर हमें q1.aspx पेज डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा कि जिसके ऊपर वो हमें 3 वैल्यूज इनपुट करने के लिए कहेगा। अगेन आई रिपीट, जिसके ऊपर हमें वो 3 वैल्यूज इनपुट करने के लिए कहेगा। कौन कौन सी वैल्यूज? दैट इज नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट। चलो मैं नंबर में लिखती हूँ, लेट्स टेक इट एज 1। फर्स्ट नेम में मैं लिखती हूँ निकिशा, लास्ट नेम में मैं लिखती हूँ जरीवाला, राइट। एंड आई एम क्लिकिंग ऑन क्वेरी स्ट्रिंग बटन। जैसे ही मैंने क्वेरी स्ट्रिंग बटन के ऊपर क्लिक किया मैं यहाँ पे URL के अंदर आप देख सकते हो q2.aspx पेज के ऊपर नेविगेट हो गई एंड अलोंग विद दैट आप यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग भी देख सकते हो आफ्टर क्वेश्चन मार्क, राइट। वहां पे मुझे मिल रहा है दैट इज NO इज इक्वल टू 1, एम्परसेंड F नेम इज इक्वल टू निकिशा, एम्परसेंड L नेम इज इक्वल टू जरीवाला, राइट। सो ये 3 नेम वैल्यू पेयर में से मैंने तीनों वैल्यू को रिट्राइव किया। नंबर मैंने फर्स्ट लेबल के अंदर असाइन किया और F नेम और L नेम की वैल्यू को रिट्राइव करने के बाद स्पेस के साथ कॉन्केटिनेट करके मैंने सेकंड लेबल कंट्रोल के अंदर असाइन कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पे URL एनकोडिंग बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। सी, जैसे ही मैंने URL एनकोडिंग बटन के ऊपर क्लिक किया यू आर एबल टू सी हम यहाँ पे Q3 पेज के ऊपर नेविगेट हो गए एंड आफ्टर दैट क्वेरी स्ट्रिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन मार्क के बाद, जिसके अंदर लिखा है NO इज इक्वल टू 1, एम्परसेंड नेम इज इक्वल टू निकिशा प्लस जरीवाला, राइट। इट इज प्लस जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे एनकोडिंग के वक्त आ गया है इंस्टेड ऑफ स्पेस, राइट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे कहा था, राइट। सी, जब भी स्पेस आप कॉन्केटिनेट करोगे तो आइदर %20 या फिर प्लस साइन वहां पे एनकोडिंग में कॉन्केटिनेट हो जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन द ब्राउजर, ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा था, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे है एंड आफ्टर दैट हमने URL डिकोड मेथड का यहाँ पे यूज किया, राइट। और वो वैल्यू को डिकोड किया और हमें यहाँ पे लिटरल कंट्रोल में अगेन निकिशा स्पेस जरीवाला मिल रहा है। अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे निकिशा स्पेस जरीवाला मिल रहा है, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि आप कैसे URL एनकोडिंग एंड URL डिकोडिंग यूज कर सकते हो विथ क्वेरी स्ट्रिंग, कि अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करके वहां पे वैल्यूज रिट्राइव करनी है, राइट। गुड इनफ। So this is all about the topic that is 4.4 query string and URL encoding, right? So this topic is completed over here. Good enough. Now students, already हमने कल that is last lecture में ये 4.4 topic तो देखा ही था, that was hidden field, right? So वो topic भी हमने 4.4 का complete कर दिया है with this practical example, that is application number 9 of your problem sheet.